Hello, dear student. Now take page number 121 in workbook, Unit 10, The Scholar's Mother Tongue. This unit already understand from textbook. Now we will complete this chapter in our workbook. Read the paragraph and answer the question. A learned Pandit once visited the court of King Akbar. He told the king and the courtiers that he had a mastery over many different languages. The Pandit could speak many languages fluently. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody in the court to find out his mother tongue. When everyone failed, the challenge was taken by Birbal. हमें पता है कि वहाँ पे एक पंडित आता है कि जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता होता है, हर किसी को जानने के लिए कहता है, बट कोई उसकी कौन सी मदर टंग है वो नहीं जान पाता। और अंत में वो जो चैलेंज था वो बिरबल लेता है। अब क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली। और लर्निड पंडित कम टू द अकबर किंग अकबर। Third, no one could find out what Pandit's mother tongue. In the fourth, the language was taken up by Birbal. Now, true and false. A Pandit come to King Akbar's court. True, Pandit was fluent in one language. वो एक ही language में fluent था. No, false. The challenge was taken up by King Akbar. False. Taken by Birbal. क्योंकि वो बिरबल ने लिया था ना. So ये false है. Now, third, give the meaning of the following word. Fluently means smoothly. Fourth, write the correct option in the books. Pandit had a mastery over many languages. No one could find out the Pandit's mother tongue. Blanks took up Pandit's challenge. किसने challenge लिया? बिरबल ने. Then turn the page. That night Birbal went quietly to the Pandit's room when he was asleep. Birbal whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. The Pandit, half awake, shouted some words in his mother tongue. अब क्या होता है कि जब पंडित उसके रूम में जाता है तो रात को वहाँ पे बिरबल जाता है और उसके ईयर में फीदर से टिकल करता है और कुछ कहता है. फर्स्ट क्वेश्चन है, When did Birbal go to Pandit's room? वो पंडित के रूम में कब जाता है? तो बिरबल went to the Pandit's room at night when he was asleep. रात को जब वो सो जाता है तब उसके रूम में जाता है. Now fill in the blanks. First, the Pandit shouted some words in. पंडित है साउट करने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो वो कौन सी लैंग्वेज में? इन हिज मदर टंग, आई मीन वो अपनी मातृभाषा में. सेकेंड है, बिरबल टिकल द पंडिट्स ईयर विथ अ फेदर. उसके कान में उसने कुछ टिकल किया, तो वो किससे किया? फेदर से. ईयर में कुछ टिकल किया. ट्रू एंड फॉल्स. बिरबल मेट द पंडित इन द इवनिंग. शाम को मिला. फॉल्स. बिरबल टिकल द पंडिट्स ईयर विथ अ पिकॉक फेदर. रॉन्ग. फेदर बताया, वह कौन सा है वो नहीं बताया, वहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे? फॉल्स. नाउ गिव द मीनिंग. टू विस्पर. विस्पर मीन्स स्पीक सॉफ्टली, आई मीन आहिस्ता कहना, कुछ ऐसी छुपी बात जो आहिस्ता. स्पीक सॉफ्टली का मीनिंग है बहुत ही धीरे से कुछ कहना. राइट द करेक्ट ऑप्शन. बिरबल ब्लैंक्स into the Pandit's ear. Whisper. Birbal tickled the Pandit's ear with a feather. Paragraph number 3. The next day, Birbal came to the court and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. The Pandit was surprised. He accepted the truth. King Akbar then asked Birbal, "How did you find that out, Birbal?" Birbal answered, "In times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue." अब बिरबल को उसकी मदर टंग पता चल जाती है, इसलिए वो दूसरे दिन पंडित को बताता है कि आपकी मदर टंग है, आपकी मातृभाषा है वो तेलुगु है,
इससे क्या होता है, पंडित है वो सरप्राइज होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि आप सही हो। अब क्या होता है कि बीरबल को भी सरप्राइज हो जाता है कि ये इसने कैसे जाना। तब वो बताता है कि कोई भी पर्सन है वो डिफ़िकल्ट टाइम में अपनी मदर लैंग्वेज में ही कुछ कहता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। उसकी मदर टंग कौन सी थी? तेलुगु। सेकेंड, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। देन कम ऑन पेज नंबर 123, राइट ट्रू और फॉल्स। द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। पंडित की मदर टंग वो तेलुगु थी। ट्रू। द पंडित डिड नॉट एक्सेप्ट द ट्रूथ। पंडित ने वो ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, गलत है, उसने एक्सेप्ट कर लिया था। सो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। नाउ गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स के मानना, एक्सेप्ट कर लेना, रिसीव कर लेना। तो यहाँ पे उसका मीनिंग लिखेंगे रिसीव। नंबर 4, राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बुक्स गिवन। फर्स्ट, द पंडित्स मदर टंग वॉज। उसकी मदर टंग कौन सी थी? तेलुगु। इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स इन हिज मदर टंग। डिफिकल्टी के समय में कोई भी व्यक्ति है वो अपने मदर टंग में ही कुछ कहता है। नाउ एडजेक्टिव। दिस पॉइंट ऑफ एडजेक्टिव वी हैव ऑलरेडी लर्न इन अवर ग्रामर टॉपिक. An adjective is a word that tells you something more about a noun, name, place, animal or thing. Adjective क्या है कि कोई भी एनिमल है, प्लेस है या तो थिंग है, उसके अबाउट हमें कुछ कहता है, जैसे कि अ हैप्पी चाइल्ड, अ लवली गार्डन, अ ग्रीन पैरोट, अ बिग हाउस. Now fill in the blanks with the correct adjective from the books. बुक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं. ओल्ड, वाइज, हाई, ब्यूटीफुल, वाइट, कॉस्टली, माइटी, सॉफ्ट, रेनी, टॉल, इजी, क्लेवर, यंग, स्मॉल, हेवी. फर्स्ट एग्जाम्पल है कि द ग्रास इज ग्रीन एंड सॉफ्ट. नाउ हमें उसका करेक्ट एडजेक्टिव है वो पुट करना है. फर्स्ट है रामू हैज़ अ कॉस्टली बाइसिकल. इट इज़ नॉट अ चीप. चीप नहीं है तो कैसी होगी? कॉस्टली. चीप मीन्स सस्ती और कॉस्टली मीन्स महंगी. द कोकोनट ट्री इज़ अ टॉल ट्री. कोकोनट का ट्री है वो कैसा है? टॉल, ऊंचा. लुक एट दैट वाइट रेबिट. रेबिट है तो उसके लिए वाइट ही वर्ड प्रॉपरली होगा, सूटेबल होगा. मिहिर इज़ अ हैप्पी बॉय. रूपा वॉन द रेस. सी इज़ अ क्लेवर गर्ल. अगर रेस वॉन की है तो वो कैसी गर्ल होगी? क्लेवर. द पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड. ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली बिकॉज ही इज़ एन ओल्ड मैन. ग्रैंडफादर है वो आहिस्ता चल रहे हैं बिकॉज क्योंकि वो ओल्ड मैन है. आई मीन उनकी एज्ड हो गई है, वो ओल्ड मैन है. द पेन हैज़ अ हैवी बैग. इट इज़ नॉट अ लाइट. लाइट नहीं है तो कैसी होगी? हैवी, वजन में थोड़ी भारी. यस. देन टर्न द पेज. पेज नंबर 124. लुक एट दोज हाई हिल्स. This is an easy sum. It is not a difficult. Patan is a small town. Hemant is a young man. He is not tall. Birbal was a wise man. It is a rainy day today. Ships sails in the mighty ocean. Okay, student, I hope you all get easily and understand well. Okay, so you have to complete page number 124 and I hope you all understand. Okay, thank you very much.